Next we have alongside with him Vivek Sham Bhatia and Dodo. Can we please have Dharmesh, Gaurav and Vivek on stage? ये मेरा चेयर है, ये मेरा है। I am just wondering मेरा मॉडल बैठेगा कहाँ? आज तू ही मॉडल है। मैं ही मॉडल है। ये तेरे बाल काटेगा, मैं तेरी दाढ़ी बनाऊंगा। So this is what we are doing, guys. Because मॉडल की कुर्सी नहीं है, तो हमने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया। गौरव मेरे बाल काट रहा है और ये मेरी दाढ़ी बना रहे हैं। So we are just kidding. Good morning, everybody. Sorry, good afternoon, everybody. We are Gaurav Bharadwaj, Dharmesh Ingorani, Vivek Sham Bhatia. We are proud members of the Iconic creative team. I hope you know what Iconic is. Does everybody know what Iconic is? Yes or no? Yay! So yes, we are a part of the Iconic creative team, and today we are going to showcase our latest collection, the Twilight collection. Right? I'm going to let Gaurav take over the brief for the Twilight collection. He'll just tell you what it is all about. So, And I'll pilot I there. hope all of you guys are following Iconic Professional on Instagram. तो आपने अभी recently बहुत सारी एक collection की pictures देखी हुई होंगी, and that is what Twilight collection is. Very close to my heart because it took around 6 to 8 months. हम सभी ने plan किया, discuss किया, and ये बहुत लंबा process था to create a collection. The collection is all about like evening looks, okay? Because like some people are going for a party, so imagine for any function, it can be a date night or it can be a nice dinner. All the looks are inspired by evening looks. तो जो भी हम looks create करने वाले हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. They are going to be very commercial looks. बहुत commercial looks होंगी. Commercial looks का मतलब होता है जो कि आप वापस अपने सैलून में जाके इन लुक्स को इम्प्लीमेंट कर सको. ये नहीं कि देखने में तो ऐसा बहुत हाई फैशन लगे लेकिन हम क्लाइंट के ऊपर कर ही ना पाए. तो ये पूरा इसको कंसीडर करके ही हमने प्लान किया है. जितनी भी लुक्स हैं उनको आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं. So that is about Twilight collection, and the rest Vivek will tell you more about it. Thank you. So as you guys must have seen, he just booked Twilight collection. अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, जैसे हम Pinterest पे है, Instagram पे है, आपने देखा होगा ज्यादा करके कमर्शियल कंटेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है. यानी कि लोगों को अब स्टाइल ऐसा चाहिए जो ऐसे ये नहीं कि ये यहाँ से बहुत बड़ा बना दिया, वो सारी चीजें हो रही है. लेकिन क्या वो क्लाइंट उस चीज को कैरी कर सकता है बाहर जाके? नहीं कर सकता है. हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम क्लाइंट को सैलून पर दे सके और वो उसको लगे कि यार मैं इसको लेके अभी तुरंत एक पार्टी में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. राइट? तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया ट्वाइलाइट कलेक्शन, जो हम आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाले हैं. इन द लास्ट सेशन which happened yesterday, हमारे और दो आर्टिस्ट निकिशा एंड सुमित also demonstrated something very similar. आप में से कितने लोग कल भी आए थे आइकॉनिक का यहाँ शो देखने? 1 and 2 people. 3. गिफ्ट मिला क्या आप लोग को? मिला? ठीक है, आज इनको नहीं देंगे. नहीं मिलेगा, आज भी मिलेगा पक्का, अगर जवाब देगा तो. So today also we going to demonstrate the Twilight collection. हमारा आइडिया ये है कि हम तीनों भी आर्टिस्ट 3 अलग लुक्स क्रिएट करें और 3 अलग अलग टूल्स यूज करें आपके सामने, ताकि आपको तीनों टूल्स देखने को मिले. ये वाला लुक इस टूल से किया जा सकता है, ये लुक इस टूल से किया जा सकता है, और जो मैं कर रहा हूँ वो एक अलग टूल से किया जा सकता है. So without taking a lot more time, let's get started. Again, can I have my model? Pratiksha, can I please have you on stage? Yay! I found a chair. Found the chair? Yes. So we shall quickly welcome our models, and as soon as they come, we'll explain what we are doing. Okay? Models, please. Can we have you on stage? There you go. That's me. So big round of applause for our models. Don't be jealous, guys. Show some energy. We need that. You guys know models are the most important things, right? Because हमारे पास models नहीं होंगे तो हम haircut practice नहीं कर पाएंगे, हम haircut सिखा नहीं पाएंगे. So again, a big round of applause for all the models. Woohoo! जोर से. So I'll start. What I am doing is a part of our iconic collection. It is the modern mullet. How many of you guys have seen or had request of clients who want the mullet nowadays? Wait.
How many of you guys know what a mullet is? My किसी को mind- पता है mullet haircut क्या है? Anybody? नहीं? Mithun haircut. More easily remember is Sanjay Dutt, Abuba, or what I have. Right? This is a mullet when it's shorter on the sides and longer at the back. This is a very old classic haircut which was originated by tribals. Right? So the Red Indians and a lot of tribals used to have a mullet, which is now coming back in fashion. But we don't do it the classic way. We call it the modern mullet, which is a lot more exaggerated. So that's what I am working on. So please have a look, and I will keep giving you all tips and tricks of how to achieve this quickest and fastest. Over to Gaurav. Thank you. What I am planning is, as you can see, my beautiful model. I am doing a hairstyling, and this hairstyling is going to be very, very simple yet very, very modern. So that is what I want to do, because you know, जब हम लोग clients के ऊपर करते हैं, time is very, very essential. अगर जितना कम टाइम में जितना अच्छा काम कर पाएंगे, that means हम we can generate more business, we can have more money in short. So that is my approach is. मैं अपने आप को खुद को खड्डे में नहीं गिरता हूँ by recommending my clients so complicated hairstyles, क्योंकि उससे क्या होगा, वो hairstyles एक 2 घंटा लगेगा, doesn't make sense. So at times you can do very simple work but do it in a very extraordinary way. So when I say that, it can be simple straight ironed hair. Now imagine straight hair can be very boring. मतलब जैसे हम बालों की modern hairstyles और ऐसी बातें सोचते हैं, straight hair कभी भी mind में आता ही नहीं है, बहुत कम आता है. We want to do crimper, we want to do curls, we want to do wavers, but at times you can do very simple thing, but do it in a way कि जब 100 जने iron करे और आप iron करो, तो आपका look एकदम extraordinary outshine करना चाहिए. And वो कैसे होगा? By taking care of baby hairs, taking very clean partings. अगर आपका ये चीजें कंट्रोल में है, तो आपका बहुत सिंपल से सिंपल काम भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख सकता है. So that is my approach. Rest you will understand more once I will start doing it. Over to Vivek. विवेक की आवाज नहीं आ रही. Hello. Thank you. I think both of you is very interesting, and I really love the prep that you guys have already done. Similarly, I have some prep done here for Pratiksha. मेरी मॉडल का नाम प्रतीक्षा है, तो मैं बार-बार मेरी मॉडल नहीं बोलूंगा, मैं प्रतीक्षा. नहीं, can't hear. Mic people. जब चालू हो गया, मजा नहीं आ रहा है. बॉस क्या कर रहे हो यार, सब विवेक की आवाज सुनने आए हैं. मैं अपना माइक दे दूं? क्या है माइक वाले? सॉरी, चलो फटाफट करे. So because we can't hear Vivek will have to take a break, because Vivek की आवाज के बिना हम शो नहीं करेंगे. रुक So- जाए हम. Sorry? You want us to stop? Mike. So also as Gaurav said, right, about the creation of how haircuts need to be presented well. In fact, आज के जमाने में वो सबसे ज्यादा important हो चुका है, because of, can anybody tell me why? Why is our presentation more important than the haircut in today's day? Anybody? एक वर्ड है, और वो वर्ड आप दिन में कम से कम 20 बार यूज करते हो. इंस्टाग्राम. राइट? इंस्टाग्राम पे क्या है, जो दिखता है वो बिकता है. राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन इज गुड, बिकॉज क्लाइंट वो फोटो डालने वाला है. आपने अरे मस्त टेक्निक है, ये है वो है, नहीं. जिसने फोटो देखा वो आपका टेक्निक नहीं देख रहा है, उसको कितना अच्छा लुक दिख रहा है वो देख रहा है. तो योर प्रेजेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउडेज. आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे है? हैंड्स अप. अभी भी आधे लोग हाथ नहीं उठा रहे, बिकॉज सब लोग इंस्टाग्राम पे है. वो बोलते हैं ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप हो ही नहीं. वो कोविड के टाइम पे ना, अगर वैक्सीनेशन का फोटो नहीं डाला तो आपको वैक्सीनेशन नहीं मिला है. So that's how everybody is there, and everybody is trying to up the game. Now that Vivek is back, are you back? No, he's not back.
Okay, till then I'll tell you what I am doing. तो मैंने अभी क्या किया है, थोड़े बालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड जस्ट टू लेट यू नो, मैंने आगे एक ट्रायंगल सेक्शन लिया है जिसको मैं बाद में डिसाइड करूंगा मुझे क्या पार्टिंग करना है. दैट विल हेल्प मी. नहीं तो क्या होता है, हम पूरा हेयर स्टाइल कर लेते हैं और फ्रंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. अभी लाइक आपने एक साइड किया, अब क्लाइंट बोलेगा लास्ट में, आपका पूरा हेयर स्टाइल हो गया, क्लाइंट सेज मेरे को पार्टिंग नहीं जम रहा है, डू सम अदर पार्टिंग और समथिंग, एंड दैट्स व्हेन यू गेट स्टक, कि अब क्या किया जाए, अब पूरा हेयर स्टाइल खोलना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डू इज, स्पेशली व्हेन आई डू हेयर स्टाइल्स, स्पेशली ओपन हेयर स्टाइल्स जिसमें मैं हाफ टाई अप या ओपन बाल रख रहा हूँ, तो मैं ट्रायंगल निकाल के उसको अलग से आइसोलेट कर देता हूँ ताकि मैं बाद में डिसाइड कर सकूं कि मुझे किस साइड पार्टिंग करने का है. ओके, सो दैट्स हाउ आई हैव डन दैट, एंड रेस्ट आई एम गोइंग टू मेक अ पोनीटेल एंड आई एम गोइंग टू वर्क अराउंड. टिल देन लेट्स विवेक की आवाज आई. विवेक, हेलो हेलो. अरे आगे, कम ऑन गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विवेक श्याम भाटिया. ये बिग बोला यार, सॉफ्ट नहीं बोला. वापस a big round of applause for Vivek Sham Bhatia. अरे 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 अरे, प्यार दिखाओ यार, प्यार. Thank you guys. Okay, let's quickly come back to the haircut, what I'm doing. As you can see, I'm creating something very interesting, very quirky. I wanted to create this drama which brings in a lot more life into Pratiksha's life. Okay, so इनके बालों को अगर आप देखेंगे तो इनका density थोड़ा medium है, and she has the kind of face who can carry a short haircut very quirkily with a vibe. यानी कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, यानी कि आप अगर उनको शॉर्ट हेयर कट दें, आप किसी भी तरीके का हेयर कट करें, कोई भी स्टाइल करें, वो कैरी कर सकते हैं. मैं ऐसे क्लाइंट्स को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ और मैं कुछ भी बहुत एकदम कमर्शियल नहीं करता फिर ऐसे टाइम पर, क्योंकि 90, आप शायद अग्री करेंगे मुझसे, 90% ऑफ द क्लाइंट्स कमर्शियल चाहते हैं. वो बटरफ्लाई हेयर कट दे दो, वन लेंथ दे दो, फॉर ग्रेजुएशन दे दो, बट बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं, शायद 10% भी ज्यादा होगा, 5% ही होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, राइट, जो जानते हैं कि हाँ फैशन क्या होता है, वो करना चाहते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो. वैसे ही प्रतीक्षा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके लॉन्ग हेयर जो है, जो कि इतने लॉन्ग भी नहीं है, थोड़ा शॉर्ट साइज है, एंड मैं उसको पिक्सी हेयर कट दे रहा हूँ. कितने लोगों को पिक्सी हेयर कट करना पसंद है? सिर्फ 3 लोगों को, सर को भी. अच्छा, कितने लोगों को पिक्सी हेयर कट या कोई भी शॉर्ट हेयर कट करने में डर लगता है? सच्ची बोलना, मम्मी का सुन लोग, सब लोग 1 2, तेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है लड़की, खाली इतना ही हाथ ऊपर किया. हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर ड्रेसर्स हियर? और बाकी लोग, कितने लोग मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे? और बाकी लोग क्या करने आए? हाँ, वेल विशर्स. वेल विशर्स. Okay. So I'm using the iconic razor. I'm using this razor which is very sharp and fancy. It's also very ergonomic. यानी ergonomic यानी क्या होता है, जो अपने शेप के हिसाब से बहुत इजीली फिट हो जाता है. यानी मैं अगर यहाँ पर अपना फिंगर भी रखता हूँ कट करने के लिए, ये इसमें रखने के बाद भी पूरा 360 घूमता है, आप किसी भी तरफ घुमा सकते हैं. ओके, ऑल्सो द ब्लेड्स आर वेरी सेफ. यानी ये नॉर्मल ब्लेड की तरह नहीं हो, 7 o'clock विल्किंसन ऐसा नहीं है. अब ये देखिए, ये मैं यहाँ पर कितना भी मारूं जोर से, मुझे नहीं कटेगा, नहीं लगेगा. ओके, वेयरएज आप नॉर्मल ब्लेड से करेंगे तो हो जाएगा. सिमिलरली दिस वर्क्स वेरी ergonomically in a safe manner. आप इसको जब यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल में यूज करेंगे तभी ही कट होगा, उसके अलावा बिल्कुल सेफ है आपके क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी. So I'm using the razor in order to create a nice short pixie shape. Client is safe, huh? That is more important. Absolutely. I think safety for both are very important. मतलब हमारा सेफ रहना और क्लाइंट का सेफ रहना दोनों ही important है. What do you think? Well, obviously, client safe रहेगा तो बाल कटाने आएगा, बाल कटाने आएंगे तो पैसे मिलेंगे. हम safe रहेंगे तो काट पाएंगे. Right? What is the most important thing we get damaged? Fingers. हर बार टक 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 टक. I don't know how many of you all have this, but मेरा ये फर्स्ट फिंगर में कोई सेंसेशन नहीं है, ना ये साइड पे ना ये साइड पे. अभी तो ऐसा होता है, कभी कट जाता है तो खून भी नहीं निकलता है. ये ऐसे कैसे होता है सर, कट जाता है तो? यार इतनी बार कट चुका है, आई थिंक वो फिंगर में खून ही नहीं है. खून ही खत्म हो गया. हाँ. I mean, मैं आपको प्रूव नहीं करना चाहता हूँ. वैसे हम देखना पसंद करते, बट और समझो कभी हो भी गया, राइट, क्लाइंट का बाल काटते काटते थोड़ा कट गया तो जबरदस्ती एसी बंद कर दो 5 मिनट के लिए. फिर क्लाइंट को बोलोगे तो आपका हेयर कट फुल खून पसीने वाला हेयर कट है. क्या गंदा जोक था ये, डोडो.
भाई कुछ नहीं होगा तो कहीं यार हंस लेगा यार थोड़ा। खून पसीने वाला है, वाओ। लेकिन एसी बंद करना जरूरी है उसके लिए। एनीवेज कमिंग बैक टू द हेयरकट्स। सो अगर आप देख रहे हैं तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं फर्स्ट आई हैव टेकन अ रिसेशन सेक्शन, उसमें द फर्स्ट फ्यू सेक्शंस टिल द बैक ऑफ द ईयर आई हैव कट देम शॉर्ट स्क्वायर एट 90 degrees, no over direction, no dragging. After the year I will over direct everything, every section to the back of the ear. Why? Because after this bit I want the length to be coming up. So इसके बाद all the way till the back में हर section यहाँ पर over direct करूँगा, every section. One second. The camera guy. तो basically जो भी I know it's complicated, 3 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, पर जो भी बोल रहा है कैमरा उस पे रखिए प्लीज, हमको अटेंशन चाहिए तो। ओके बैक, आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल ओवर अगेन। सो जो मैंने किया है, आई हैव टेकन अ रिसेशन सेक्शन एंड कट स्क्वायर शॉर्टर एट 90 degrees ऑल द वे टिल द बैक ऑफ द ईयर, 90 degrees विदाउट एनी ओवर डायरेक्शन। मुझे ये पार्ट शॉर्ट रखना है और फ्लैट रखना है। इसके बाद जो भी सेक्शन लूंगा मैं, वर्टिकल सेक्शंस, एवरीथिंग विल बी ओवर डायरेक्टेड टिल द बैक ऑफ द ईयर, ऑल द वे टिल द सेंटर ऑफ द बैक। ये पूरा ओवर डायरेक्ट होके यहां तक आएगा। क्यों? अभी 2 सेकंड पहले ही बोला था मैंने क्यों। To maintain, to create more length at the back. Now, a very important thing for all of us as educators, we love when people ask questions. If you don't ask questions, मतलब अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो 2 ही चीज हो सकती है, राइट? एक, आपको सब कुछ मालूम है, दूसरा आपको कुछ नहीं मालूम है, राइट? सो सब कुछ मालूम तो सिर्फ भगवान को है। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन पूछने से कोई छोटा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बट क्वेश्चन पूछने से नॉलेज बढ़ता है, राइट? सो एंड योर नॉलेज विल हेल्प एवरीबडी एल्स ऑल्सो। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग टुडे। किसकी गर्लफ्रेंड है, किसका शादी हो गया है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये मेंटू से वो वाले क्वेश्चन मत पूछना। प्रोफेशनल सवाल पूछ सकते। वैसे विवेक सर को वो वाले क्वेश्चन बहुत पसंद है, जस्ट टू लेट यू नो। विवेक सर को ही वो क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैंने मना किया है। नहीं, वो क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम डीएम के लिए रखते हैं, आप यहाँ पे प्रोफेशनल सवाल पूछ सकते हैं। So moving back to Gaurav. Okay, so what as you can see, जब हम पोनीटेल्स वगैरह करते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है, एक साइड का लूज हो गया, दूसरा साइड का हो गया। तो मैंने क्या किया, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने फटाफट सबसे पहले मैंने हेयर वैक्स लगाया हेयर लाइन के आसपास। उससे आप देख सकते हो जो फिनिश आ रहा है। थोड़ा सा और जूम इन करेंगे सब। कैन यू सी, एक एक बाल पोनी टेल के अंदर जा रहा है और ये विदाउट एफर्ट्स है, विदाउट मेहनत किया है। मतलब मैंने सिर्फ 2-3 बार ब्रश किया एंड उस समय थोड़ा लूज भी हो रहा था, मुझे चलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, कोम से सारे बालों को कोम करके पोनीटेल के अंदर बालों को किया, उसके ऊपर हार्ड स्प्रे लगाया एंड देन उसके ऊपर इट्स लाइक अ ट्रिक, ओके? सो इट विल हेल्प यू अ लॉट रेदर देन आप ऐसा फिनिश अगर स्टार्टिंग में करना चाहोगे ना, नहीं होगा। एक साइड हो जाएगा, दूसरा साइड नहीं होगा, दूसरा साइड हो जाएगा, एक साइड नहीं होगा। सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ कंट्रोलिंग हेयर इन लेसर टाइम, ओके? सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। आई होप यू लाइक द फिनिश। आप देख सकते हैं हेयर लाइन के पास कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है और यही आपके काम को स्टैंड आउट करवाएगा, ओके? नहीं तो पोनीटेल क्या है, कोई भी कर सकता है, राइट? बट दाढ़ी में भी किया है पोनीटेल, राइट? बट वो बहुत बूशी, डिसअपियरिंग इन द एक्ट। Alright, coming back to my haircut, I am trying to create a symmetrical look, यानी कि मेरा जो haircut है ये symmetric है, asymmetric नहीं है। Symmetric और asymmetric में फर्क पता है हमें? Symmetric क्या होता है? Can anybody tell me? Symmetry. Exactly. She rightly said it. Both the sides being equal is called symmetry. And when we call it asymmetrical is when both the sides are not equal. Very simple. Okay? तो मेरा जो haircut है ये asymmetrical नहीं है, especially when it comes to the sides. टॉप में इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। आप चाहे तो उसको एक साइड रखेंगे तो यहाँ शॉर्ट दिखेगा, यहाँ पर सब लॉन्ग दिख सकता है। आप चाहे तो पूरा शॉर्ट करके यहाँ से सब कुछ सिमेट्रिकल रख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, बट मेजरली टू क्रिएट द बेस, क्योंकि अभी मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ साइड में, आई पर्सनली प्रिफर इट टू बी वेरी सिमेट्रिक और मैं एक सिमेट्रिक शेप क्रिएट कर रहा हूँ
all the way from the side to the other side. Okay, from left side going to the right side. Also इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मैंने राइट साइड स्टार्ट किया तो आप भी राइट से करें, मैंने रेजर यूज किया तो आप भी रेजर यूज करें. आप सीजर भी यूज कर सकते हो, आप क्लिपर भी यूज कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू. क्लिपर थोड़ा बाद में यूज करेंगे तो बेटर रहेगा. आई प्रेफर ईदर सीजर और रेजर. अगर आपको थोड़ा विस्पी इफेक्ट चाहिए, विस्पी या पी वाला, विस्की वाला के नहीं, वो 7 बजे के बाद. विस्पी, अगर आपको एक थोड़ा विस्पी इफेक्ट क्रिएट करना है बालों के अंदर, देन रेजर विल रियली हेल्प यू, जो मैं यूज कर रहा हूँ. सो यू कैन ट्राई एंड यूज द रेजर. So I have now finished the side. I'm connecting the corners to the sides. Now, because it's such a textured haircut, we don't have to make it very clean. So what I'm going to be doing is taking vertical sections, pulling it straight out of the head, and then just deep point cutting it. So I'll have a little bit of overhang that comes along with it. Because it's a very textured, messy haircut, it just adds more to it. You can also make it very sharp. It will just be more drastic. Also, have you all noticed the length of my scissor? Can anybody guess what is the length of the scissor? Can you? The 7-inch scissor. It is our iconic range is barbering scissor. Barbering scissors are generally 7 inches. In fact, it starts from 7 inches. It's a 7-inch and an 8-inch scissor. Why? Can anybody tell me why? 5-inch, 5.5-inch, 6-inch, 6. सब है. Why is barbering में 7 and 7.5 inch used? Can anybody tell me? What is the most common thing we do when we do barbering? Scissor over comb. So, comb, scissor. 5-inch scissor will cut this much. 6-inch scissor will cut this much, 7-inch scissor will cut this much. Which generally जो हमारा साइड प्रोफाइल होता है, अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं ये पूरा सेक्शन लेता हूं और मेरे को करना है, I can cut all of it in one go. Makes our haircut faster and cleaner. So that's the advantage of having a 7-inch scissor. Moving to Gaurav, please. So as you said, smarter and cleaner. That's what I'm doing, crimping. And very effortlessly. I'm like, as a hairdresser, I never thought कि एक कोई crimper ऐसे भी काम कर सकता है. तो अगर आपने देखा, usually हम कैसे करते हैं crimper, like एक जगह पे hold करके रखना पड़ता है. Wherein this makes your work more easy and more faster. So very easy. This is called Super Crimper from Iconic Professional. And मैं basically texture के साथ खेलने वाला हूँ. That is my plan. And I would like to show you कैसे काम करता है ये. तो आपने सेक्शन लिया, और इससे आपका बहुत जल्दी क्रिम्पिंग भी हो जाएगा पूरे बालों में. दैट इज अ प्लस पॉइंट. और एफर्ट नहीं लग रहे हैं. यू विल नॉट गेट टायर्ड. एंड मतलब आप अपने असिस्टेंट वगैरह को भी बहुत इजीली बोल सकते हो क्रिम्पिंग करने के लिए आपके लिए. So though I don't encourage that, but still, to save time, this is like very innovative tool. आपको बस एक सेक्शन इस क्रिम्पर के बीच में रखना है और आपको ये अपने आप क्रिम्पिंग करके दे देगा. So that's like that. Normally when we are doing crimping, we have to shut it, right? Yes. Wrist exercise, which saves. और फिर उसमें बहुत दबाना भी पड़ता है. कहीं पे ज्यादा दबाते हैं वहां पे ज्यादा अपने को अच्छा पैटर्न मिलता है, जहाँ पे कम दबाते हैं वहां कम पैटर्न दिखता है. Wherein इसमें आपको दबाने का जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है और उससे ज्यादा दबेगा भी नहीं. ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपको पूरे बालों में एक जैसा आउटकम भी मिलेगा. दैट इज द प्लस पॉइंट. That's the advantage, right? Like normally whenever we are doing haircuts, जो चालू करते तो बहुत मजा आ रहा है, सब ध्यान देके करें यहाँ haircut, styling, but जब end तक आता है तो हम थकना शुरू हो जाते हैं, right? But the problem is that is the most important time, because जब हम end कर रहे हैं हम आगे के काट रहे हैं, ये सब दिखने वाला है, ये सब स्टाइल होने वाला है, right? पीछे के स्टाइल हो रहे हैं पहले. So remember that, do not get tired while doing it, and if you're getting tired, use smarter tools. Yes, Absolutely, I agree, and that's exactly what Iconic does. अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्रिम्पर तो इतने सालों से पहले से है ना हमारे पास. क्रिम्स का कोई कमी थोड़ी है, बहुत सारे ब्रांड्स के पास है और सभी के पास 20 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा से.
लेकिन उसके अंदर एक इनोवेशन लाना, चीजों को इजी बनाना, हेयर ड्रेसेस के लिए इनोवेटिव बनाना, थोड़ा फन बनाना इज व्हाट आइकॉनिक डज एंड दैट्स व्हाट वी आर नोन फॉर एंड यू कैन सी दैट विद दैट टूल। अभी आप में से कितने लोग आप में से ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करते हैं? कोई नहीं? अच्छा नहीं है। ओके, एक दो आप जितने लोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा जो आप लोग अच्छा, जस्ट टू नो, टाइम लगती आई एम है। सॉरी, मैं मतलब सबसे क्वेश्चन, कितने लोग यहाँ पे सांस लेते हैं? लेते हैं भाई, आप लोग सांस नहीं लेते हो? भी कुछ लोग नहीं लेते हैं। भाई जीने के लिए I जरूरी है। just wanted to know. तो जितने लोग ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि बस एक हेयर स्टाइल को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रेप के लिए अगर हम क्रिप कर रहे हैं तो क्रिप में कितना एफर्ट लग जाता है। एक करो, उसको 10 सेकंड रखो, फिर दूसरे को, फिर ऐसे वो करने 1 मिनट में तो सिर्फ एक सेक्शन होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते आधा पौना घंटा खाली क्रिप के प्रेप में जाता है। Whereas आप खुद अग्री करेंगे कि अगर आपके पास ऐसा टूल है आपको ज्यादा थकावट नहीं होगी। इट इज, और वो जो गौरव कर भी रहा है ना, वो खुद से ऐसे नीचे नहीं आ रहा है। आप यूज करके देखिएगा, आपको सिर्फ प्रेस करना है और वो अपने आप नीचे आता है आपके हाथ के साथ, ऐसा। So it's that fabulous. I think you should also try it. You should definitely. For all you guys, whatever tools we are using today, they're all on display at the Iconic booth. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं Iconic booth कहाँ है, आप सबको पता है। So please, if you feel like trying, testing, checking, anybody holding it up, feeling the weight, Iconic booth is the place for you guys to check it out. And coming back to my haircut now, मैंने अपना बेस क्रिएट कर दिया है साइड से। ऑफ कोर्स उसको फिनिश करते हैं वो लास्ट में किया जाता है, तो मैं भी उसको लास्ट में फिनिश करूंगा। अभी मैंने मेरा बेस कट किया है। नाउ आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द टॉप व्हिच इज माय क्राउन एरिया। कैन यू लुक अप प्रतीक्षा? मोर परफेक्ट। तो अगर आप कैमरा में देखेंगे, आई हैव क्रिएटेड अ ए सेक्शन लाइक दिस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्रोचिंग द हेयरकट फ्रॉम द टॉप। मैं अपने हेयरकट को क्राउन एरिया से अप्रोच करूंगा। अभी मैंने मेरा रेजर रख दिया है और मैं अपने सिजर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिजर्स अगेन बाय आइकॉनिक। इसका मॉडल नंबर है आइकॉनिक TK100। इफ यू आल्सो वांट यू कैन ट्राई दिस। बहुत सारे सिजर्स है, उसमें से ये मेरा सबसे फेवरेट है, तो अभी फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, क्रिएटिंग अ ए सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द साइड्स। आप कोई भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी, राइट से भी। द अप्रोच हैज टू बी डायगोनल। आप पूरा हेयरकट जो फ्रंट का है इसको डायगोनली करेंगे, यानी डायगोनल बैक, diagonal back, diagonal back, diagonal back, and you have to try to over direct it to the previous section। यानी पहला सेक्शन जो है वो मेरे सेंटर में लाके कट करूंगा, दूसरा सेक्शन पहले वाले सेक्शन के पास लाके कट करूंगा, तीसरा वाला दूसरे के पास लाके कट करूंगा, और इस तरीके से ओवर डायरेक्शन को मेंटेन रखूंगा। लेट्स वॉच इट। And also when I'm cutting it, I'm creating a graduation. Okay? Graduation क्या होता है? शॉर्ट से लॉन्ग जाता हुआ शेप को हम कहते हैं ग्रेजुएटेड। So I'm creating a graduation here, like that. All right. Going back to the second section, which will get over directed here. मैं बैक से इसको कनेक्टेड रख रहा हूँ। ये रहा मेरा गाइडलाइन। जैसे मेरा गाइडलाइन आ गया, इसको थोड़ा पीछे की तरफ पुश करूंगा, and I'm going to cut it there. जिस तरीके से अभी फर्स्ट और सेकंड सेक्शन कट किया, उसी को आगे भी डायगोनली पैरेलली कंटिन्यू करता रहूंगा। ओके, ओवर टू यू गाइस। So Vivek just mentioned what shape he's putting. He said graduation, right? Which brings me to my favorite question of all time. मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ, हर जगह पूछता हूँ। Even Gaurav loves it. We all love this question. So अभी हम बाल काट रहे हैं बहुत सालों से, बट हेयर कटिंग ऑल्सो हैज बीन वेरी ओल्ड, राइट? बट आज तक देर आर वेरी लिमिटेड वेज ऑफ डूइंग हेयर कट। एनीबडी अग्रीज? और देर आर अनलिमिटेड वेज ऑफ डूइंग हेयर कट? हाउ मेनी वेज आर देयर टू कट हेयर? कैन एनीबडी टेल मी? नहीं? Nobody? Nobody knows how many ways are there to cut hair? Check. What he said is one. Yeah. Graduation is one of them. There are only two other left. पीछे से हाथ आ रहा है और वो हेयर ड्रेसर भी नहीं है। वो UFC का फाइटिंग कंपटीशन में बांट लेता, उसको भी मालूम है। Okay, so only two more left. One is graduation. What are the other two? और ये दो हम हर हेयर माइक लास्ट है।
एंड दो बचे हुए हैं, हम वो हर हेयर कट में यूज करते हैं. कैन एनीबॉडी से? Sir, graduation and layering. लेयरिंग इज द सेकेंड वन. अभी एक और बचा. माइक प्लीज. माइक Come on, माइक guys, माइक. this is not that tough. Everybody पीछे should know. डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, वो उठा के आपको साइड में रख देगा. थर्ड वन. One length. One length. We only have 3 ways to cut hair. One length, layers, and graduation. And whatever we do, we all play around between these 3 techniques. Right? We'll mix them, mingle them, change our angles, change our directions, and we will keep changing haircuts. But there are only 3 ways to cut hair. Over to you, Gaurav. So as you can see, what I am doing is just playing around with the ponytail. तो थोड़ा सा पोनीटेल को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैंने आगे क्रिम्पिंग किया. एंड क्रिम्पिंग के बाद जस्ट टू शो यू हाउ इट्स गोना लुक लाइक. सो इट्स गोना गिव अ वेरी डिफरेंट फील टू इट. मैंने साइड के बालों से पोनीटेल किया है, तो अगर इसका आप यू नो if you'll see, this is going in this direction, wherein जो टॉप के बाल हैं उसको I'm taking it like this just to make it look little different. Okay, so simple ponytail है, but yet it's gonna look slightly different. And then I'm gonna play with some different texture altogether. यार हम दोनों हेयर कट कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं. बालों Okay. के साथ खेलना भी जरूरी है. हाँ हाँ हाँ. Absolutely. Work and play. Make and your play. work fun, so you can have fun while you're working. So जब काम खत्म होके घर जा रहे हो ना, तो थक नहीं गए, बोर नहीं हो गए. Interesting. So keep adding fun. Also, Can there be one more extension board here, or do I have to use that one? we can share it. I'll have to come there. Or Gaurav is using Oh, that. shit. Sorry, we cannot share it. Yeah. What I am using right now is Getting one of my favorite tools from Iconic. It's the Iconic IRE 2.0. आप लोग ने कितने लोगों ने ये ड्रायर देखा है? नाइस. कितने लोगों ने ये ड्रायर यूज किया है? नहीं. बहुत महंगा है. Please try it. Yes, महंगा है, It is. but it is importantly why it is expensive. There are reasons behind it. So I'm just going to explain the dryer functions to you quickly. This is the dryer, on and off button. When you put it on, you get your temperature setting and fan speed setting on the circular motion here. मैं फैन कम करूंगा, वो येलो लाइट कम, ब्लू लाइट कम होते जाएगी, फिर वो ब्लू लाइट बढ़ते जाएगी. So you have control of speed. Normally हम लोग को 1 और 2 ही स्पीड रहता है, right? We have 4 speeds in this. Then is the temperature. Normally again temperature setting 2 ही है, medium and full heat. इसमें we have from 40 degrees to 60, 80, 100 and 120. With all of that, there's an important button here जो चालू करने के बाद ऊपर पुश कर दोगे तो वो ये सब सेटिंग को लॉक कर देता है. अभी मैं कुछ भी दबा रहा हूं, ना मेरा स्पीड हिलेगा, ना मेरा टेम्परेचर हिलेगा. वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? अरे कभी कभी ब्लो ड्राई करते करते वो बटन दब गया और 10 मिनट के बाद मालूम पड़ा ठंडी हवा आ रही है और वो सेक्शन सीधा ही नहीं हो रहा है, वो 10 मिनट वेस्ट. इसमें वो प्रॉब्लम ही नहीं. उसके साथ अलॉन्ग विथ इट वी हैव अ कोल्ड ब्लास्ट बटन. बटन एक बार दबा दो, ठंडी हवा आ जाएगी ऑटोमेटिकली. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मुझे शो ऑफ करने को बहुत अच्छा लगता है, ये ऑन ऑफ बटन के नीचे एक और बटन है, इधर दिख रहा है, ये सॉरी कोल्ड स्विच, उसके नीचे एक और बटन है. ये किसी को पता है एक और बटन क्या करता है? ये एनीबॉडी? दैट इज आवर AI बटन. द ड्रायर हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके लिए गौरव ने बोला महंगा है. राइट अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहां यूज करें? चैट जीपीटी पे, राइट? इमेजिन दैट इन अ ड्रायर. अभी आप सोच रहे हो कि ड्रायर में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वेल एक्चुअली जब भी हम ड्रायर यूज करते हैं टेम्परेचर सेटिंग होती है. फॉर एग्जांपल आपने इसे 100 डिग्रीज पे रख दिया. आप जब ब्लो ड्राई कर रहे हैं यहां से 100 डिग्रीज आ रहा है, बट वो बाल पे 100 डिग्रीज नहीं जा रहा है. क्यों? एम्बिएंट टेम्परेचर. हम सैलून में एसी चालू रखते हैं तो सैलून का टेम्परेचर ठंडा है, तो जब ये और वो सैलून के टेम्परेचर से मीट होगा, जब आपके बाल पे आएगा तो वो टेम्परेचर लो हो जाता है. फिर हम क्या करते हैं? ड्रायर को बाल के ऊपर चिपका के रखते हैं.
राइट? उससे आपका बाल तो जल ही रहा है, आपके ब्रश भी जल रहे हैं, तो वो मत करो, डबल खर्चा है। सो व्हाट दिस ड्रायर डज इज एम्बिएंट टेम्परेचर रीड करके आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो बाल पे वो एग्जैक्ट टेम्परेचर देता है। तो अगर फॉर जस्ट एज एन एग्जांपल ये 100 डिग्रीज पे है, आपका रूम टेम्परेचर 20 डिग्रीज है, तो इफेक्टिवली 80 डिग्रीज आ रहा है बाल पे, तो ये ऑटोमेटिकली उसको 120 कर देगा, तो 100 डिग्रीज का आएगा। So whatever you set is exactly the temperature the hair is going to get. So that's very interesting and I really love that feature. It also helps me style the hair better because जब हम diffuse dry कर रहे हैं और blow dry कर रहे हैं, वो temperature setting के वजह से कभी ज्यादा heat आ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी hair ज्यादा frizzy हो जाते हैं, कोई hair बराबर सूखते नहीं है। Mostly curly hair में आप notice करोगे, जब curly hair dry कर रहे हैं तो कुछ थोड़े ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, कुछ थोड़े कम ड्राई हो जाते हैं, फिर जो कम ज्यादा ड्राई हो गए वो फ्रिजी लगते हैं। It you help you in that as well. I'm just going to quickly blast dry my model's hair, and Vivek is using the same dryer. He will give you more details about it. Absolutely. अभी जैसे कि आप लोग दोनों ने कहा कि महंगा है, मैं कुछ लोगों से कुछ लोगों के मतलब अपन सब हेयर ड्रेसर्स ही है। अभी 16 Pro Max निकला है, पता है कितने का है वो फोन? 1.25 लाख रुपए का, राइट? सस्ते से सस्ता भी लोगे वो भी 1.5 लाख रुपए का है। अगर मैं वो फोन आपको 50,000 रुपए में दूँ तो क्या आपको वो सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है? अभी भी 1.5 लाख रुपए का फोन 50,000 में सस्ता, पक्का सस्ता, एकदम ब्रांड नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि यूज किया हुआ सेकेंड हैंड, पक्का सस्ता है ना। ये 20,000 का ड्रायर लेने बोलेंगे ना किसी को तो महंगा लगेगा, है कि नहीं? राइट, इट इज दैट वे। तो लोगों को एक आईफोन जो शायद आपको रोज के लाइफ में कितना वापस से इन्वेस्टमेंट का देगा नहीं देगा आपको नहीं पता, लेकिन एक ड्रायर जो आप शायद दिन में 10 बार यूज करेंगे, आप शोज में ले जाएंगे, आप सेमिनार्स में ले जाएंगे, आप शूट्स में ले जाएंगे, प्रेजेंटेबल दिखोगे, लग्जरियस एक्सपेंसिव दिखेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा। वहां पर हम लोगों को 20,000 का ड्रायर हम बोलते हैं महंगा है, राइट? दैट्स द मेंटालिटी, वी नीड टू चेंज दैट मेंटालिटी। हमारे पास यहाँ पे कुछ हेयर ड्रेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम्युनिटी को बनाया है, बिल्ड किया है, इंडस्ट्री के लेजेंड्स है। कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर हरीश भाटिया जी एंड श्याम भाटिया जी। मेरा एक सवाल था आप दोनों से, आप दोनों का, कैन वी हैव द माइक देयर प्लीज? I have one question before you ask a question to them. ओके प्लीज सर, पहले डोडो पूछेगा। Sir, good evening. Sorry, good afternoon. Good afternoon. Both of you have been legend in our industries. मतलब जब बाल भी नहीं थे तब से आपके नाम सुन रहे हैं। I have कर क्या रहे थे? अगर बाल नहीं थे तो क्यों नाम था आपका? नहीं, मेरे बाल नहीं थे। अच्छा ऐसा। हाँ। So, how does it feel to have your third generation performing on stage and watching him live? Come on guys, big round of applause. देखिए, अभी एक तो मीडिया का जमाना आ गया है, सोशल पे भी सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो आजकल के बच्चे जितने टैलेंटेड काम कर रहे हैं, हमारे टाइम में हमें बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी करनी पड़ती थी। अभी के बच्चे ऑलरेडी सुनने वाले भी काफ़ी कुछ जानते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यस। और हमारे टाइम में तो हम तो ऐसे टाइम में लोग ये नहीं सोचते थे कि हम बोलते थे कि भाई कटिंग कैसे करनी चाहिए, अगर तुम्हें लेयर्स करना है तो क्या करना चाहिए, अगर तुम्हें स्टेप करना है तो क्या, सर आगे से करते वो लेयर्स, पीछे से करते वो स्टेप, मतलब कुछ भी बोलते थे। और आज की तारीख में, अभी मेरा 3 दिन पहले ही पूना में सेमिनार तक 400 ब्यूटिशियन थे और वहां पर मैं पूछ रहा हूँ डिग्री क्या, तो सिर्फ एक ही डिग्री मालूम है, 90 डिग्री। बाकी जितनी डिग्री सब जगह बताया तो सब रॉन्ग है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सभी कुछ सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा। जो आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं वो हर तरह की चीज़ उनको मालूम है। आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कंपटीशन करके या जो यहाँ तक स्टेज तक पहुँचे हैं, आप लोग भी इनसे सीखिए और अपने आप को अपडेट करिए। और आप भी एक दिन ऐसा सोचना कि हमको भी इस स्टेज तक आना है। That's a very important tip. I completely, अगर हम यहाँ पे आके अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं तो आई एम श्योर आप में से कोई भी कर सकता है। इसके लिए जब भी भाई
जैसे करली बाल है, वेवी बाल है, उसमें जब भी कटिंग करोगे स्टेप्स ही आएगा, जब भी सीधे बाल है उसमें कटिंग करोगे लेयर्स ही आएगा और कुछ नहीं। थोड़े वेव है, बाउंसी है तो उसमें फेदर आएगा। तो ये एक बेसिक है, वो भी नॉलेज नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखना है। कस्टमर बोलेंगे करली बाल वाले आएंगे मुझे लेयर्स करना है, हाँ हो जाएगा, नहीं उसको समझाओ कि आपके बालों में लेयर्स नहीं स्टेप्स होगा। हम लोग सीधे बालों में स्टेप का लुक दे सकते हैं उसको बाद में सेटिंग करके, लेकिन कटिंग तो लेयर्स में ही होगी। ओके So I guess Vivek, you had some questions. Yes. Now your turn. मेरा क्वेश्चन था श्याम सर आपसे कि आप अभी 27 साल से हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं। 27 है कि ज्यादा हो गया? 42 ईयर 42 ईयर्स से आप hair dressing कर रहे हैं? बोला था ना मैं, आप जब घर मेरे के सर पे हिसाब बाल से गिरे तब से नाम सुना। आई एम 42 और वो साल से बाल काट रहे। अच्छा सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। 42 54 ईयर्स इन मुंबई What? ओह माय गुडनेस। Big round of applause, guys. और कटिंग सीख के 9 साल की उम्र से सीखा था, सीख के मुझे 60 ईयर्स हो गए हैं। हाँ वाओ Wow. 60 इयर्स। मुझे 2 बार पैदा होना पड़ेगा उसके लिए। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मुझे याद है मैं तो छोटा था स्कूल में तभी, आप जब फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया गए थे सिंगापुर, शायद फर्स्ट आपका ट्रिप था, तो आपने मुझे बताया था कि आप एक सीजर लेके आए हो उस टाइम से। वो कितने साल पहले की बात है? 2004 2004, यानी आज से 20 साल हो गया एग्जैक्टली। वो जो सीजर आप लाए थे वो कितने का था सर? तो पहली बार मैं आपके लिए लाया था कि मेरे बेटे को गिफ्ट करूंगा। 25,000 का वो सीजर था वो। उस टाइम पे 2004 में। और 2004 में मैंने 1500 रुपए का पहली बार कोम खरीदा था। हाँ तो दैट्स व्हाई के सरप्राइज की एक कोम की कीमत क्यों मुझे लगी ऐसा कि उसके लिए मैं थैंक्स करूंगा। जैसे संस्कार के बारे में बात करूंगा तो हरीश जी से मिला है मुझे, और शिक्षा मुझे अलग अलग एजुकेशन टीचर से भी मिली यहाँ से। तो आप सबके लिए मैं गौरव, डोडो और आप विवेक के लिए एक ही बात बोलूंगा जो आप में हमेशा दिखती है मुझे, कि शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और संस्कार ये 2 मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कभी गिरने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको हारने हारने नहीं नहीं देंगे। Wow. तो ये आप दोनों के लिए हमेशा बना रहे। थैंक यू। और मैं वापस एक ही बात बोलता हूँ हमेशा सबको कि जो भी आप काम करते हो ना, आप मजबूरी से नहीं करते हो, आप लोग सब मजबूती से करते हो। आप तो ये Beautiful. मजबूती आप हमेशा बनाए रखिए, तीनों का फेविकॉल का जोड़ बना के रखिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके लिए मैं आइकॉन को और सभी हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड मेंटोर है, हरीश जी हो चाहे और भी, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे और Thank थैंक्स you. करना चाहूंगा। Thank you very much, sir. Thank you. so much, sir. साथ This feels very honoring to be getting appreciated by the legends of the industry. थैंक यू। Thank you so much, sir. तो मेरा कहने का पॉइंट यही था कि हम लोग अपने टूल्स में, सीजर्स, कोम, ड्रायर्स, इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले ना तुरंत कोई भी हेयर ड्रेसर सोचता है अरे ये कौन लेगा, ये तो बहुत महंगा है। बहुत ये महंगा नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ऐसा है। मुझे तो आदत है कि मुझे जो भी चाहिए बेस्ट चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि हमारे पास कुछ है बजट इस वजह से हम ले लेते हैं। नहीं भी था तभी भी मेरा यही था कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, शायद मैं एक टी शर्ट कम खरीद लूंगा या एक जीन्स कम ले लूंगा इस महीने, लेकिन मैं अपना सीजर अच्छा वाला लूंगा, अपना कोम अच्छा वाला लूंगा, ड्रायर बेस्ट वाला लूंगा। और शायद मुझे लगता है मेरा वही एक आदत है जिसने आज मुझे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। सो आई थिंक यू ऑल शुड इन्वेस्ट इन दैट। नथिंग इज एक्सपेंसिव फॉर मी व्हेन इट कम्स टू, मतलब सिंपल है मेरे लिए, जब हेयर के लिए कुछ बात आए तो मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, बस ऐसा है। मैंने 2000 में सीजर खरीदी, एक साथ में 8 सीजर, जो एक आप अपने आप में फिक्स हो जाती है और सब में वेरिएशन है। यस, मतलब टेक्सचराइज अलग अलग टेक्सचराइज सीजर है, और एक सीजर की कीमत थी 35,000 उस टाइम पर। उस टाइम पर। Yes, वो 8 सीजर मैंने एक साथ में खरीदी थी, और 8 सीजर से मैं कटिंग करता था। वाओ। वो भी एक डिफरेंट एक साथ 8 सीजर से? एक साथ 8 सीजर से, सब टेक्सचराइज सीजर है। यार ये ब्रिलियंट है। डोडो आपने मुझे एक सीजर पकड़ने के लिए 3 फिंगर चाहिए। तो 8 3 था 24 फिंगर। सर और वो सीजर को आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको खड़ी सीजर से कटिंग अच्छा, होती point है, सही और करना। उसको टेक्सचराइजिंग होती है। यस यस। कहीं कहीं खड़ी से भी करनी पड़ती है, वो उसमें अपना खुद का टैलेंट लगाना पड़ता है। थैंक यू। Sorry, I'm just going to take 1 minute from you guys because I want to introduce a very interesting tool. Guys, you all have been using Iconic for a very long time, I believe. But आपको Iconic के tongs मालूम है, आपको Iconic के blow dries मालूम है, आपको Iconic के irons मालूम है, brushes मालूम है. But आपको पता है Iconic even barbering tools बनाता है?
कितने लोगों को पता है? मुझे ग्रेट. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड बार्बरिंग टूल्स एंड उसमें से हमारा लेटेस्ट पीस इज द आइकॉनिक नियो. इट्स द स्मॉलेस्ट ट्रिमर विच इज द मोस्ट पावरफुल ट्रिमर. खाली छोटा है, उसका स्पेशलिटी वो नहीं. द शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वन. तो नॉर्मली आप छोटे ट्रिमर देखते हो वो होम यूज के लिए रहते, लाइट रहते, बराबर चलते नहीं है. दिस इज वेरी पावरफुल. ऑल्सो ग्रेट फीचर इज, आपको पता है ये क्या है नंबर? कोई बोल सकता है? बैटरी परसेंटेज. तो जब भी आप काम करो नॉर्मली ना, क्या बोलते हैं, चार्ज करके जब बैटरी वाले यूज कर रहे हो तो मालूम नहीं पड़ता कब खत्म होने वाला है. नो स्ट्रेस, आपको हमेशा मालूम रहेगा कब तक चल रहा है. एंड इट इज जीरो गैप, मतलब इससे फाइन ट्रिमर आपको नहीं मिलेगा. ये एकदम क्लीन करेगा. और सो दैट आपको कट्स ना आया है, बिकॉज नॉर्मली जब ये ट्रिमर एकदम शार्प होते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत कट्स और निक्स आ जाते हैं. उसके लिए हमने हमारे ब्लेड को कर्व किया हुआ है. तो पॉइंटेड ब्लेड नहीं है. अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो लगेगा ही नहीं मुझे, राइट? तो इससे कटना या क्लाइंट को थोड़ी भी तकलीफ आना, रेडनेस आना और कम हो जाएगा. So please go and check out Iconic clippers, trimmers and shavers. In fact, I really love this shaver. Do we have the Yep. shaver here? बहुत मस्त है, पॉकेट साइज. मतलब हम लोगों को भी जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है आइकॉनिक के टूल्स से, when I saw that shaver, I was like, wow, look at this. मस्त ना, एकदम पॉकेट में आ जाए उतना, क्वर्की लगता है एकदम. It opens up like this. और इंडियन ब्रांड ऐसा कोई है ही नहीं जिसने अभी तक इसको बनाया. अपन सब इंटरनेशनल हेयर ड्रेसर्स और बार्बर्स को देखते हैं ना, वो फेड करते हैं इससे जीरो फेड मशीन. वो इंडिया में किसी ब्रांड ने बनाया ही नहीं था. और आइकॉनिक इज द फर्स्ट ब्रांड टू बिल्ड दिस एंड मेक इट इन इंडिया एंड ब्रिंग इट. सो दिस इज व्हाट वी डू एंड आई रियली लव इट. ये 3 कलर्स में आता है डोडो. कौन से कलर्स में आता है पता नहीं. There is black, ऑल्दो ये मेरा फेवरेट है. red and yellow. Yes. Even this comes in 3 colors. But इसका एक एडवांटेज है, आपको 3 अलग नहीं लेने पड़ेंगे. ये आप ले रहे हो तो आपको 3 अलग कलर लेने पड़ेंगे. इसमें आप एक लीजिए, हम आपको बॉडी साथ में दे देते हैं. तो ये सिल्वर जो है वो एक आगे बॉडी है. एक छोटा स्क्रू ड्राइवर आता है, आप अनस्क्रू करो, ग्रीन वाला लगा लो, रेड वाला लगा लो या सिल्वर वाला लगा लो अपने मूड के ऊपर. और 2 महीने ये लगा लिए, 2 महीने दूसरे बार और लगा लीजिए. नाइस, दैट्स रियली नाइस. इंटरेस्ट बना रहता है, आप बोर नहीं हो जाओगे अपने क्लिपर से. Yeah, that's the whole idea. The tools has to be social media friendly आज के जमाने के हिसाब से, ताकि आप अपने कंटेंट भी बना रहे हैं तो आप ऐसे अलग अलग कुछ टूल्स दिखा पाएं जो और किसी के पास नहीं है. ऐसे ही मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल यूज किया है, इसको बोलते हैं प्रो वेवर. बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरी मॉडल के जो बाल हैं वो फाइन एंड स्ट्रेट है नेचुरली. अभी फाइन और स्ट्रेट बालों पे अगर मैं कर्ल्स वगैरह करूंगा ना, सबसे जल्दी खुल जाते हैं. You know that? You know, जैसे कर्ल्स करते हैं, by the time मेरा क्लाइंट फंक्शन पे पहुंचेगा, all curls will be gone half. So the best way is you should know how to play with our product. So what I'm doing is waver. And wavers आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है. अगर आप देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम आ गया, पर वेवर्स को खोलने का एक तरीका होता है, which I will show it to you, कि इसको कैसे खोलना चाहिए ताकि अच्छे से डिफाइन हो आपकी वेव्स, ड्राई ना लगे आपके बाल. On that note, and बाकी के बालों पे मैंने क्रिम्पिंग किया था, and because बाल बहुत फाइन है तो क्रिम्पिंग से मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम मिल गया. And I'm just playing around with this area to make it look more fun and fashionable. मैं फिलहाल अपने हेयर कट को ड्राई कर रहा हूँ. इट्स गोना बी मोर ऑफ पावर ड्राई एंड वेरी मेसी, वेरी टेक्सचर्ड. ड्राई करने के बाद मुझे और फिनिशिंग करना है, मैं आपको वो बताऊंगा बाद में कैसे करते हैं. डोडो, आपने कहा पावर ड्राई. व्हाट इज पावर ड्राई? पावर ड्राई, सो मतलब पावर के साथ ड्राई करना. अपना मस्त फुल फोर्स लगाओ, नहीं ड्रायर का फुल फोर्स लो. सो ये डायरेक्शनल ड्राइंग होती है जब आप एक डायरेक्शन में ड्राई करते हो, राइट? एक ब्लास्ट ड्राई होता है जब आप सब जगह ड्राई करते हो बाल को, तो ब्लास्ट द हेयर आउट. पावर ड्राई, यू आर फोर्सिंग द हेयर टू मूव इन नेचुरल डायरेक्शन. सो मीडियम हीट, मीडियम स्पीड एंड रोटेशन, फास्ट फास्ट. तो बाल कोई भी एक सिंगल डायरेक्शन में सेट नहीं हो रहे हैं, आप उसको फुल फ्रीडम मूवमेंट दे रहे हो जैसे आपको स्टाइल करना होगा बाद में. सो सर्कुलर मोशन, फास्टर एंड कीप हैविंग फन. मैं भी खेल रहा हूं अभी बालों के साथ. Absolutely, that's the most important thing. Now what I'm doing is I have created a shape which goes from left to right side. मैंने अपने साइड्स को पूरा क्लीन कर लिया है. When I say I've made it clean, प्लीज याद रखिए मेल हेयर कट, फीमेल हेयर कट में, शॉर्ट हेयर कट में फर्क होता है. Whenever you are doing female haircut,
आपको यहाँ से ऐसा वो स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं देना है, यू हैव टू कीप इट एज सॉफ्ट एज पॉसिबल, जैसे कि अभी हमने रखा है इसको। मैंने ऐसे ये जो अभी वी शेप जैसा आ रहा है, यहाँ पे हल्का थिन आ रहा है, मैंने उसको वैसा ही रखा है। अगर मैं उसको पूरा कट दे दूंगा सीधा तो फिर प्रतीक्षा नहीं दिखेगी, प्रतीक दिखेगी, है ना। तो हमें वो नहीं करना है। We want her to look feminine, we want her to look beautiful, and at the same time very editorial and fashionable. So maintain that। वो एक thin line होता है, जब short haircut की बात करते हैं ना, तो मेल और फीमेल haircut में बहुत thin line है, आपको बस वो line पता होनी चाहिए, okay? Now I am going to slightly connect this haircut only from one side। मैं सिर्फ एक साइड से इसको साइड के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे साइड से डिस्कनेक्टेड ही रखूंगा, okay? Watch it how I am just taking a vertical section, bringing my hair back, और साइड पे जो लेंथ आ रहा है उसके साथ इसे कनेक्ट, पॉइंट कट करते हुए। आई एम जस्ट डूइंग अ पॉइंट कट एंड ब्रेकिंग दिस आउट। और मैं आपको इस टूल के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगा। ये टूल तो एक है, लेकिन 4 अलग अलग टाइप की टेक्सचर क्रिएट कर सकता है। एक तो हम इसे ऐसे फ्लैट यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें जो मूवमेंट मिलता है वो ऐसा मिलता है। दूसरा जो तरीका है, जो कि दूसरे वेवर्स के साथ नहीं हो सकता है, हमारे पास एक और वेवर है बट उसके साथ ये नहीं कर सकते हो, उसी के साथ कर सकते हो। उससे क्या कर सकते हो, आप वर्टिकल सेक्शन ले सकते हो और उसको ऐसे कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, अभी जो ऐसे वेव मिल रहा है वो आपको ऐसे वेव मिलेगा। इट्स लाइक यू कैन क्रिएट 2 डिफरेंट टेक्सचर। थर्ड, यू कैन डू आयन कर्व्स विद दिस। जैसे आयन के साथ कर्व्स करते हैं, वैसा आयन के साथ जब कर्व्स करते हैं बाल बहुत अटकते हैं, राइट? इससे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यू कैन लिटरली डू आयन कर्व्स एंड यू कैन आल्सो डू लिटिल स्ट्रेट। बट आपको आयन के जैसा स्ट्रेट नहीं मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, ओके? इट विल गिव यू नाइस शाइन, जैसा आयन करने के बाद बालों के अंदर शाइन आता है। सो वन टूल बट कैन क्रिएट 4 डिफरेंट टेक्सचर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रो वेवर। इट क्रिएट्स डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स इन द हेयर। जयेश, कैन आई हैव टेक्सचराइजिंग पाउडर? जयेश, मुझे टेक्सचराइजिंग पाउडर दीजिए। ओके, अब मैं यूज कर रहा हूँ तीसरा टूल। मैंने हेयर कट करने के लिए क्या क्या यूज किया अभी तक? थैंक यू। आई वांट इट, ओ प्लीज बी केयरफुल। इट्स हियर, आई हैव इट। थैंक्स। मैंने हेयर कट करने के लिए क्या क्या यूज किया? नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैं ही बता रहा हूँ। उसका गिफ्ट मिलेगा, क्वेश्चन आंसर। चलो ठीक है, एक गिफ्ट के लिए आप ही बता दीजिए मैंने अभी क्या क्या यूज किया। 3 चीजें यूज किए कट करने के लिए। मैं ड्रायर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए क्या क्या यूज किया। कैन वी गिव द माइक टू दिस जेंटलमैन? How do you know he's gentle? So I have a very funny thing, like you know, when he's like gentleman or what's your good name? तो किसी का बैड नेम तो नहीं होता है यार। मुझे भी यही लगता है, लोग बोलते हैं What's your good name? गुड नेम क्या होता है? मेरे पास है गुड नेम धर्मेश, बैड नेम डोडो। सॉरी, माइक नहीं चल रहा है, चालू है। आशीष। हाय आशीष, ये आपका गुड नेम हुआ। और बैड? Ash. Ash. I like that. Yes, bro. Tell me. You have used razor, Okay. scissor and texturizing scissor. Absolutely right. A huge round of applause for this boy. क्या Sorry, चाहिए Vivek. आपको गिफ्ट में? हाँ, क्या चाहिए? ID 2.0 बोल दे। Sorry, I'm just gonna take over from that. Yeah. So right now अभी मैं अपने वो बेचारा रुका है कुछ और के लिए। मिलेगा आपको गिफ्ट। सर कुछ बोल रहे हैं, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आई एम गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट डेफिनेटली। ID। ओके, सो अब मुझे इस बाल हेयर कट में बैक पे टेक्सचर डालना है, बिकॉज जितना फ्री रहेगा उतना अच्छा मूवमेंट आएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज वी कैन पुट टेक्सचर। वी हैव टेक्सचराइजिंग सिजर्स, थिनिंग सिजर्स, वी हैव रेजर्स व्हाट विवेक यूज। बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई वांट टू गिव टेक्सचर ऑन अ मलेट विद अ रेजर? रेजर इज डायरेक्शनल। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगा तो बाल नीचे जाएगा, राइट? बट मिलेट के लिए मेरे को ऊपर जाते हुए चाहिए, नीचे आते हुए नहीं। सो I will use my scissor only and I will end up going from underneath and just slicing this bit out very randomly to what all bits I want to be standing up. जब मैं नीचे से काट रहा हूँ, अंदर के बाल छोटे और ऊपर के बाल लंबे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली खड़ा होएगा। फिर आपको स्टाइलिंग में भी टेंशन नहीं, उसको बाल ऐसे घड़ी घड़ी करना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली खाली ऐसे हिलाएगा, इट ऑटोमेटिकली स्टे देयर।
So even texturizing is not कि आग बंद करके बस डाल दिया ना है. समझो, there is reason for doing everything, right? जब मैं हेयर ड्रेसर था भी नहीं, मैं एक हेयर सेमिनार में था ऐसे, और इनके जगह पे मैं बैठा हुआ था. और आप हेयर ड्रेसर नहीं थे तो आप हेयर सेमिनार में? Exactly, मैं मॉडल था. अच्छा. मैं इनकी जगह पे बैठा हुआ था. This is the year 2003 और 2004. एक कनाडा से हेयर स्टाइलिस्ट आए हुए थे. He was टोनी एंड गाय का आर्ट डायरेक्टर. अभी हेयर स्टाइलिंग में भी आर्ट डायरेक्टर होता है, मालूम नहीं था मुझे. लगा खाली बॉलीवुड में आर्ट डायरेक्टर होता है. So वो क्या कर रहा था, यही जो हम कर रहे हैं. मैं बैठा हुआ था, वो दुनिया को बता रहे थे कि क्या हो रहा है. जब उनकी बातें सुन रहा था, एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट इंस्पायर्ड टू बिकम अ हेयर ड्रेसर. द टेक्निक, द लॉजिक, द साइंस, द ज्योग्राफी कहाँ गया, ज्योमेट्री वाज मेकिंग मी लाइक, अरे बाल काटने में इतना लॉजिक लगता है क्या. हम मुझे लगा भाई काटे छोड़े जैसे गिरे वो हेयर कट है, राइट. जब आप बाल नहीं काटते तो आपको इतना ही आइडिया है, राइट. एंड he said something very, very, very interesting. For him, the idea was the haircut should grow out better. Right? So for the haircut to grow out better, you need to cut the haircut in the shape and design you want to put it. So remember that हर चीज के लिए we can do 100 things, but what is important and what will make my haircut stand out and grow better. Client को नहीं दिखाना है. वो लोग ना नाचते नाचते बाल काट रहे. बाल अच्छे कटने चाहिए भाई. आप नाच रहे हो, आपका कार्डियो हो रहा है. क्लाइंट को कुछ एडवांटेज नहीं है उसमें. So always remember, right tools for right things. Absolutely, I agree. And I'm almost done with my haircut. Me too. I Me just too. thought I'm waiting for them to finish so that I can show you the whole look. Or would you like to see now? Should I show the whole look? कैसा लग रहा है? Are we Do you about want to be to do done? like a question answer for them? We have a lot of gifts to give away. But before that, I want to know, are we almost done? Yep. Are we going to take time? Yeah, Done. just 5 minutes and we up for it. So question and answer session चलना वाला था, because we have to give gifts. देखो दिल से देना चाहते हैं हम गिफ्ट, so please answer and try to get the gifts. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टूल इंट्रोड्यूस किया आप लोग से. वो हमारा एक ट्रिमर था, राइट? सबको दिखाया छोटा ट्रिमर. I'll ask the questions, you raise the hand and we'll pick for the answers. वो ट्रिमर का नाम क्या था? ध्यान दे रहे हैं लोग, ये लोग बहुत आगे बैठे हैं. मैडम इन द सेंटर प्लीज, माइक. His new trimmer. New trimmer. New trimmer. न्यू ट्रिमर. She New- said new trimmer. New. She meant to say NEW. NEW, न्यू. ए हाँ, यू वेरी क्लोज. ए हाथ ऊपर, कौन चिल्लाया? हाथ सबको सुनाई देगा ना. न्यू, अभी सब बोलो, अभी सबने सुन लिया. न्यू, बोल एक और न्यू. So I will give it to the guy who's raising his hand and said Neo before anybody else did, because हम सब लोग ने चिल्ला लिया था, उसने सबसे पहले चिल्लाया था. So it is actually called the Neo trimmer. For that we will be giving you a small little prize, but prize ceremony साथ में करेंगे सबका, क्या एक एक करके दे. Okay, guys, so are you ready to see the look? Yes? No? एनर्जी चाहिए थोड़ा, तभी दिखाया. मैं नहीं दिखाएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही ले जाएगा मॉडल को. आजा. What's your name? Pankaj, guys. For Pankaj we have a beautiful iconic scissor. सही जवाब के लिए एक गिफ्ट. और बहुत बचे हुए गिफ्ट, तो प्लीज गाइस, we are going to ask more questions. Please answer. Okay, till then I also have some gifts and my question is, कोई बता सकता है, मैंने इसमें दो टूल्स यूज करे हैं जो जिसने अलग अलग टेक्सचर क्रिएट किया है. आंसर नहीं देना है, सिर्फ अपना हाथ रेज करना कोई है. नहीं चिल्लाएगा, जो चिल्लाएगा वो डिस्क्वालीफाई. तो मैंने दो टूल्स यूज करे हैं, एक जो ये वेवर वाला, एक जो क्रिम्पिंग वाला. तो उनका नाम क्या है ये बताना है बस. तो जस्ट रेज योर हैंड. ओके, लेट्स कैन यू हैव द माइक. सुपर क्रिम्पर. दूसरा अभी आधा तो नहीं दे पाएगा मैं. आधा गिफ्ट. एनीवन एल्स? अभी एक को तो सब मालूम पड़ गया. प्रो वेवर. प्रो वेवर एंड सुपर क्रिम्पर.
Super Crimper. सही आंसर है guys. A big round of applause. Can we have you on stage, please? And on that note, I would like to give you. Can we have after this? Can we have some music After this. after yes. this? Thank you, man. Thank you. You can give it to them. Music, please. I was also gonna turn my model so that y'all can see his face, but उसका magic तो पीछे है. Can I get Elnet please from one of you guys if we have it? उधर Elnet उधर. I have Swatchkopf. Hey, जो ब्रांड पैसा नहीं दे रहा उसका नाम नहीं लेने का. I only use L'Oreal. You have glasses? Can we have some music? Are we ready, guys? Yes? You all want to see the final looks? क्या हम ऐसे ले जाए? And that haircut looks so niche. Are we ready? Are we ready? ऐसे नहीं. Okay, एक साथ, एक मिनट, Five. एक मिनट. 4, 3, 2, 1. and here are your iconic looks. Get up and walk. Please take a walk. Yeah. Wait, then three of you walk together. Okay. Come to the honor. Hope Come. you like all the look, guys. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. This is by far one of the best crowds that we've had. It's a full house, so thank you so much. Thank you. And we love you guys. And if you need more, we will see you at the iconic booth. We're going to perform Yes. all day long. Yes. So अगर आपको और जानना है, और देखना है, और सीखना है, तो ये iconic booth, please. Yes. Don't forget to follow us on Instagram. Gaurav Bhardwaj, Dodo the Barber. बता पीछे. Dodo the Barber. मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा. मेरे पीछे नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ. विवेक श्याम भाटिया. नाम तो Okay. सुना ही होगा. And make sure take a picture of all of us and tag all of us With and make us iconic famous in Mumbai. And all the beautiful tags that we have, we will reshare them. So we are also going to try to give you as much as publicity from our end. So make interesting stories. Don't make a simple as a photo wala. Right? Yes. Be innovative, be creative, and we'll give you guys the shout out on our pages. Okay, cool. Thank Thank you. guys. Thank you very Thank you so much. And just to like, अगर आप मेरा लुक देखें तो जहाँ पे बहुत क्लीन होना चाहिए वहाँ क्लीन है, जहाँ टेक्सचर होना चाहिए वहाँ टेक्सचर है, and that is what you need to play. तो जो भी आपको टेक्सचर डिफाइन करना है वैसे वो डिस्टिंग्विश भी होना चाहिए. Can we have one picture picture all with of the us models? together, Yes. all the models, Shall we all just the walk ahead? artists? Come. We were Wait, a picture together. Together? the picture. Sorry. We can take it in the front also. That क्या कर रहा है यार? एक्सरसाइज करा रहा है तू मुझे. कहाँ करे? Okay, we'll take one in the front and one here. चल Come. ठीक है. Thank you guys. Thank you so much. We'll Thank see you you so again. much. Thanks a lot. And make sure come there on iconic stage. We'll be creating more looks, more models, and a lot of inspiration. Yeah. And we'll Okay. be playing a lot again. Thank you guys. Thank you. Thank Bye. you. Thank you Bye. very much. You guys can take another walk. Let everybody take pictures. These guys are going to do another small walk for you guys to take pictures of the models and the haircuts. And you all have any questions, anything, you can ask us there or DM it to us. Thank you.